بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی فضا سے ڈویژن میں فضائی آلودگی کا راز برقرار۔ فیصل آباد میں دن کے آغاز کے نسبت ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی 228 سے کم ہو کر 186 پوائنٹس پر آ گیا۔ ٹوبہ ٹیک میں آلودگی کی شرح 174 پوائنٹس کو چھو گئی۔ چنیوٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 161، جھنگ کا 160 پوائنٹ ریکارڈ۔ فضائی آلودگی بڑھنے کا خدشہ، ماہرین نے ایئر کوالٹی انڈیکس کو حساس اور کمزور افراد کے لیے مضر صحت قرار دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں دن کے آغاز کی نسبت ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی 228 سے کم ہو کر 186 پوائنٹس پر آ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی نارو، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر بھر میں فضائی آلودگی کی بات کی جائے تو دن کے آغاز کے نسبت ابھی تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو 42 پوائنٹس کم ہوئے ہیں، 228 سے کم ہو کر 186 ہو گئے ہیں، لیکن ایئر کوالٹی انڈیکس جو سکیل ہے اس کے مطابق تاحال فضائی آلودگی کا راج ہے اور بڑی وجوہات میں شامل ہیں انڈسٹریل یونٹس اور ساتھ میں ڈائنگز، بوائلر جن کے لیے جو ویسٹ ہے وہ کوالٹی کے مطابق استعمال نہیں کی جا رہی، اور ساتھ ساتھ جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں 14 لاکھ کے قریب وہیکلز رجسٹرڈ ہیں فیصل آباد میں، ان میں بڑی تعداد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے بھی شامل ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہی جو شہری ہیں ان کو مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال کریں، کالا چشمہ لگائیں تاکہ آنکھوں کی جلن سے محفوظ رہیں، اور پھیپھڑوں کی سانس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کسی کو نہ ہو۔ فی الفور قابو پانے کی ضرورت ہے ایئر کوالٹی انڈیکس پر، فضائی آلودگی پر، تاکہ آنے والے دنوں میں زیادہ مسائل نہ ہوں۔ جی۔ اور دوسری جانب چنیوٹ میں فضائی آلودگی بڑھنے پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اسموک کاؤنٹر قائم۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر احمد خان نے کاؤنٹرز کا دورہ کیا اور حکام کو ہدایات جاری کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کمیل حیدر۔ جی کمیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ چنیوٹ کو بھی فضائی آلودگی کا سامنا ہے، اسموک جو ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس دن بہ دن بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ شہری جو ہیں وہ اسموک سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اسموک کاؤنٹر جو ہے اسے فنکشنل کر دیا گیا۔ ایم ایس نے وزٹ کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اسموک کی وجہ سے جو شہری متاثر ہو رہے ہیں اس حوالے میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسموک سے جو ہے نا جو ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے جو مریض ہیں ان میں اضافہ رپورٹ ہونا شروع ہوا، تو ہم نے یہاں پہ ایک کاؤنٹر اسٹیبلش کیا ہے جس میں اسموک کا فوکل پرسن بھی ہے، اور یہ دو ہمارے فوکل پرسن ہیں۔ ان کا کام ایک تو اویئرنیس ہے، دوسرا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کتنے مریض آ رہے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ مریضوں کو اور جو ان کے لواحقین ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں ان کو اویئر کریں تاکہ اس اسموک کے جو اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اور میرا چنیوٹ کے شہریوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں ریگولرلی، اور سفر جو غیر ضروری سفر ہو اسے گریز کریں۔ بالکل، ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر احمد خان کا یہی کہنا ہے، ماسک کا استعمال کریں، بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کریں، گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں تاکہ اسموک سے بچا جا سکے۔ جی کمیل، بہت شکریہ آپ کا۔ اسموک کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کے انسداد اسموک ایکشن تیز کرنے کی ہدایت، فصلوں کی باقیات اور کوڑا جلانے پر مقدمات درج کیے جائیں، آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں اور فیکٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، اسموک کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل یقینی بنایا جائے، ضلع انتظامیہ کو بھرپور انسداد اسموک آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت، کوتاہی برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کی انسداد اسموک ایکشن تیز کرنے کی ہدایت، فصلوں کی باقیات اور کوڑا جلانے پر مقدمات درج کیا جائیں، آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں اور فیکٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، اسموک کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل یقینی بنایا جائے، ضلع انتظامیہ کو بھرپور انسداد اسموک آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت دی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں اینجیوگرافی مشین 3 سال سے خراب، دل کے مرض میں مبتلا مریض بچے اینجیوگرافی کرانے کے لیے رل گئے۔ لواحقین کہتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے ایف آئی سی جانا پڑتا ہے، حکومت اینجیوگرافی مشین فعال کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ تفصیلات جانتے ہیں زادار حسین سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مخیر حضرات کی جانب سے چلڈرن ہاسپٹل میں اینجیوگرافی مشین فراہم کی گئی تھی تاکہ مریض بچوں میں جو کہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان کی بروقت تشخیص ہو سکے اور انہیں علاج مکمل فراہم کیا جا سکے، مگر 3 سال سے اینجیوگرافی مشین یہاں پہ خراب پڑی ہے، جس کے سبب مریض بچوں کو جو ہے وہ دیگر اسپتالوں میں جا کے علاج کروانا پڑتا ہے۔ کیا مجبوریاں ہیں، والدین کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے، کہاں سے آئے آپ؟ جی ہم ادھر فیصل آباد سے ہی آئے ہیں بھائی۔
बच्ची को मसला है? बच्ची को हार्ट का मसला है, इसकी को हमने करवाई थी दिल वाले हॉस्पिटल से और इधर से नहीं हुई। यहाँ पे मशीन ही नहीं अवेलेबल है। मेरी यही दरख्वास्त है आप सबसे कि हुकूमत से कि इधर जल्द से जल्द मशीन की फॉर्मेट कर दी जाए। अपील है मेरी इनसे। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब से अपील है कि जो एंजियोग्राफी मशीन यहाँ पे तकरीबन 3 साल से बंद पड़ी है उसे फाल किया जाए, ताकि मरीज़ बच्चे जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर दीगर अस्पतालों का सफ़र करते हैं तो उन्हें सफ़र ना करना पड़े और दहलीज पे इलाज की सहूलत उनके लिए मुयसर हो सके। जी बहुत शुक्रिया आसादार, अपडेट कर रहे थे। और सिनियोट के सरकारी अस्पताल में शुगर के मरीजों को मुश्किलात दरपेश। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी में शुगर स्ट्रिप्स नायाब। हुकूमत दावे तो करती है मगर अस्पताल में 2 रुपए की शुगर स्ट्रिप्स तक मौजूद नहीं है। अपडेट कर रहे हैं चिन्नौर से, जहां सरकारी अस्पताल में शुगर के मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। वैसे तो जी पंजाब हुकूमत महकमा सेहत जिम्मेदार है कि लाखों रुपए की अद्वियात जो है वो अस्पतालों में फराम कर दी गई हैं। ताम DHQ ज़िला की सबसे बड़ी एमरजेंसी है, ज़िला का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर शुगर चेक करने के लिए स्ट्रिप्स जो है वो मौजूद नहीं है। 2 रुपए की एक स्ट्रिप होती है और शुगर चेक करने के लिए वो स्ट्रिप्स जो है वो मौजूद नहीं है, और जिस वजह से जो शहरी हैं जिनकी शुगर बढ़ गई है या कम हो गई है उसको चेक करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये मामूली सी गफलत है, किसी की भी कीमती जान जो है वो ज़ाय हो सकती है जिस वजह से शुगर स्ट्रिप्स ना होने से शहरी परेशान नजर आते हैं। क्या कहेंगे, मरीज को लेके आए हैं? मैं यहाँ पे मरीज लेके आया हूँ। जिला का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर मरीज लेके आया हूँ, उसकी शुगर जो है वो हाई हुई थी और यहाँ पे स्टिप भी मौजूद नहीं है। एक 2 रुपए की स्टिप है, वो भी यहाँ जिले के सबसे बड़े अस्पताल में 2 रुपए की स्टिप भी मुयसर नहीं है। अदवायात की यहाँ पे अदम दस्तयाबी है। तो मैं हुकूमत बाला से ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी मरीज आए हैं उनकी स्टिपें वगैरह, उनकी अदवायात तो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, उनको दस्तयाब किया जाए। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अद्वियात की फराहमी के हवाले से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा है। शुगर स्टिप्स जो है वो नायाब हो गई हैं। DHQ ज़िला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि शुगर स्टिप्स जो है वो यहाँ पर फराहम की जाए, इसके साथ साथ दीगर जो अद्वियात की कमी है उनको भी पूरा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया बाबर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि झंग में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी। दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम मकामात पर कैमरों की तनसीब की जा रही है। जदीद कैमरों से सिक्योरिटी इदारे मुअस्सर निगरानी कर सकेंगे। ताजर बरादरी ने भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को खुशाइन करार दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम मकामात पर कैमरों की तनसीब की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जंग समेत 18 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तोसी के हवाले से ADP स्कीम में 40 करोड़ रुपए की जो है रकम जो है मुख्तस की गई थी, जिसके बाद जो है वो काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें जंग के जो मरकजी चौराहे हैं उसके अलावा शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जिनमें बाईपासेस जो है वो शामिल हैं, वहाँ पर जो है सेफ सिटी कैमरों की तनसीब का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे मेरा कैमरा मैन नज़ीम अहमद आपको दिखा सके तो इस टाइम कचहरी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो सेफ सिटी के फेज़ 1 के हवाले से जो है वो कैमरा की तस्दीब का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। हाई रेजोल्यूशन ये कैमरे हैं जिससे ना सिर्फ जो है वो चेहरों की शनाख्त मुमकिन हो पाएगी, बल्कि जो है वो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के भी जो है शनाख्त का अमल मुमकिन हो पाएगा। पुलिस के मुताबिक इस तमाम तर अमल से ना सिर्फ जो है जराइम पेशा अनासिर के ऊपर जो है वो काबू पाना मुमकिन हो पाएगा, बल्कि जो है वो जराइम की शरह को कम करने में बड़ी हद तक मुआवन साबित होगा। DP ऑफिस में इस हवाले से खसूसी तौर पर जो है वो कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहाँ पर जो है वो 24 घंटे जो है वो जो माहिरीन हैं उनकी जो फराइज सरंजाम देंगे और इस हवाले से पुलिस को किसी भी अगर मदद की ज़रूरत होती है तो फौरी तौर पर मॉनिटरिंग का काम सरंजाम दिया जा सकेगा। पुलिस के मुताबिक इसी के अलावा जो है वो हाईटेक दीगर तनसीब जो अशिया हैं वो भी जो है वो पुलिस एहलकारों को जो है वो फराहम की गई हैं, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो गाड़ियों के अंदर टैब्स फराहम किए गए हैं, जहाँ पर मॉनिटरिंग का काम जो है वो सरंजाम जो दिया जाएगा। जबकि इसी के अलावा जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो गश्त का निज़ाम भी मज़ीद मौसर बनाया गया ताकि स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर जो है काबू पाना मुमकिन हो सके। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें तालीम के मैदान से। आपको बताएं कि सरकारी स्कूल मुस्तकिल किया तो आरजी असातिज़ा से भी महरूम हो गया। हुकूमत ने असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए स्कूल टीचर इंटर्निस रखने का ऐलान किया है, जिस पर ताहाल अमल ना हो सका। फैसलाबाद में असातिज़ा की 6000 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। अपडेट कीजिएगा।
स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई सबक नहीं सीख सका। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर हर साल कॉलेज टीचर इंटर्नी रखकर काम चलाया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए असातिज़ा मैसर हों। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो मुतअद्दिद बार ये ऐलान हुआ कि स्कूल टीचर इंटर्नी रखे जाएंगे CTIs की तर्ज पर, लेकिन ताहाल फैसलाबाद में स्कूल टीचर इंटर्नी की एक बार भी मंजूरियां जो हैं वो नहीं हो सकी, जिसके बायस फैसलाबाद में 6000 से ज़ायद जो असातिज़ा की खाली सीटें हैं वहां पर पढ़ाने के लिए मुतबादल के तौर पर आर्जी टीचर मौजूद नहीं है, जिसके बायस सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा कम होने के बायस बच्चों की तालीम जो है वो मुतासर हो रही है। इस हवाले से तालीमी हलकों की तरफ से मुतअद्दिद बार ये डिमांड की गई है कि हुकूमत जिस तरह कॉलेज में कॉलेज टीचर इंटर्नी रखती है, इसी तरह सरकारी स्कूल में असातिज़ा की खाली सीटों पर आर्जी तौर पर स्कूल टीचर इंटर्नी रखे जाए। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने का आज आखिरी रोज। डिवीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा टैक्स गुजार टैक्स रिटर्न जमा करा चुके। FPR दफातर में ताहाल शहरियों की बड़ी तादाद गोशवारी जमा कराने के लिए मौजूद है। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। फैसलाबाद डिवीजन में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हैं और वो तमाम अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स है तो रात 12 बजे तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। FPR की जानिब से इससे कबल 2 बार डेडलाइन में तौसीक की गई थी, ताहम आज 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है और FPR की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि इसके बाद तारीख में किसी किस्म की भी तौसीर नहीं होगी, तो वो तमाम अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स है या जिनके पास कुछ असासे हैं तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। FPR हुक्काम के मुताबिक 1 नवंबर के बाद वो तमाम अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका। वासा फैसलाबाद की नहरी हजवेरी टाउन के बासियों पर पड़ने लगी भारी। हजवेरी टाउन में 3 रोज से सरकारी पानी बंद, रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाका मकीन फट पड़े। कहते हैं मुतअद्दिद बार दरखास्तें जमा कराई हैं, ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त हजवेरी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर वासा की जानिब से मुहैया किए जाने वाला सरकारी पानी जो है वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घर के जो घरेलू अमूर हैं वो तो एक तरफ ख़राब हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का स्कूल जाना और मर्ज़ हज़रात का दफातर में जाना, काम पर जाना जो है वो भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, इतला भी की गई है मुतल्लिका महकमे को, लेकिन ताहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस वक्त हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि पानी नहीं आ रहा, इस वजह से किन मुश्किलात का सामना? बच्चियां ने भी स्कूले जाना, सब ने भी जाना, मेंटल बच्चे हैं। तो बच्चों को परेशानी नहीं हो रही कि अब स्कूल जाना है, घर में खाना पकाना किस तरह? हाँ जी, घर में पानी 3 दिन होया पानी नहीं आया, बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशानी जो है वो बन चुकी है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ रहा है, पानी नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीबों के महल्ले आन के लोगों दी गरीबों दी फरियादां सुनते हैं। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है सिटी 41 की। गल ये 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। करबला तो पानी बंद होया सी ते मुसलमानों की हुकूमत च तो पानी देना चाहिए। मरियम साहबा आप तो तुसी पानी बाहरों मंगाउने आ ते गरीबां नूं पानी नहीं मिल रहा। ये अफसरशाही तुहानूं बदनाम कर रही है। ये इस करके लाइनां पाईयां दी पानी दियां गरीबां नूं पिलाउण लई। कोई बच्चा स्कूल जाण लई बैठा आ, किसी दे घर पानी है नहीं, किसी ने वजू करना। खुदा दा खौफ खाओ, गरीबां सोचो। तुहानूं इन्हां ने अफसरशाही ने तुहाडा मरियम साहबा खत्म कर देना। हमारे साथ और भी इलाका मकीन जो है वो मौजूद है। मुझे बताइएगा कि जैसे उनका कहना था कि पानी नहीं आ रहा, दफातर जाने से भी लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, दरख्वास्त जमा करवाएं? जी, मुतअद्दिद बार महकमा वासा को इतला किया है, लेकिन किसी ने भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना।
3 दिन से पानी की बूंद बूंद को तरस गया है। मोहल्ला महंगा पानी बाज़ार से ख़रीदने पर मजबूर हैं, और जो हमारे इलाके में पानी आ रहा अगर आ भी जाए तो वो सीवर मिला पानी गंदा होगा, जहाँ से पाइप टूटे हुए हैं, कोई हाल नहीं है। महकमा वासा का हेड ऑफिस हमारे मोहल्ले के सर के ऊपर है, लेकिन हमारा हाल इतना बुरा है कि पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कोई भी बंदा यहाँ पर हमारी फरियाद सुनने के लिए नहीं आ रहा। महंगे दामों पानी जो है वो खरीदना पड़ा है, जिसकी वजह से इलाका में जो है वो खासे परेशान नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि दरख्वास्तें जो हैं मुतअद्दिद बार दी हैं, लेकिन बूंद बूंद को तरस चुके हैं। जी, इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। जी मरियम, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद जामिया चिश्तिया चौक से इकबाल स्टेडियम जाने वाले रियाज शाहिद रोड की सार ड्रेनेज टूट फूट का शिकार। सीवरेज के गंदे पानी से भरी ड्रेन मच्छरों की आमाजगाह बन गई। गंदे पानी से उठने वाले ताफून अहल इलाका का जीना दो भर कर दिया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान सईद से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जो हैं हल होने का नाम नहीं ले रहे। हम बारहा इन मसाइल पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये हालात देख लीजिए कि जामिया चिश्तिया चौक से जो रोड स्टेडियम की तरफ जाता है, रियाज शाहिद रोड, और बाज़ औक़ात इसको स्टेडियम रोड भी कहा जाता है, इसके हालात ये हैं कि इसके दोनों जानिब रोड साइड ड्रेन जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये टूट फूट का शिकार है, बल्कि इसके अंदर जो है गंदगी और गलाजत के और कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जो है मच्छर जो है उनकी भी यहाँ पर अफजाइश हो रही है। पहले ही जो है वो मौसम इस तरह का है कि फ्लू और दीगर वायरसेस जो है मच्छरों की बिना पर फैलने वाले वो सर उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इस रोड साइड ड्रेन को नहीं ठीक करवा रही है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, ये कब से ख़राब है और इसका क्या आपने अब तक कोई सुना नहीं, कोई आया हो यहाँ? तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और जब बारिश होती है ना तो इसमें बहुत पानी खड़ा हो जाता है। जामिया चिश्तिया चौक से लेकर स्टेडियम से गेट तक जो है ना बहुत पानी खड़ा हो जाता है। क्या मुतालबा करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से? यार इसको जल्दी सही होना चाहिए। जी, आपने ये सुना, इन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जी, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। सिटी 41 की खबर पर म्यूनसिपल कमेटी तांदलियावाला को होश आ गया। बिलाल शहीद पार्क के ग्राउंड की सफाई और मुरम्मती काम का आगाज तो कर दिया, लेकिन मुरम्मती काम में मटेरियल नाकिस लगाने का इंकशाफ है। मेन गेट के साथ जगह को हमवार किए बगैर ही मुरम्मत कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला में म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया को सिटी 41 की खबर नशर होने के बाद जो है होश आया, और बिलाल शहीद पार्क के झूलों वाले ग्राउंड की सफाई का काम और उसके साथ साथ जो झूलों के अतराफ टफ टाइल का काम है मुरम्मत का, उसको शुरू कर दिया गया है। सिटी 41 ने चंद रोज़ कबल जो है इस मसले की निशानदेही की, जिस पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला ने नोटिस लिया और म्यूनसिपल कमेटी अफसरान को जो है हदायत की कि जल्द से जल्द जो है इस काम को जो है और झूलों वाली ग्राउंड की जो हालत है उसको बेहतर बनाया जाए। एक जानिब जो है हालत बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी जानब जो यहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाकस इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर एक जो चेक एंड बैलेंस जो है उस पर नहीं रखा गया है। बिलाल शहीद पार्क का ये मेन गेट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये इस जगह को मुरम्मत किया गया है। मुरम्मत इस तरह किया गया है कि इस जगह को बैलेंस नहीं किया गया, अनबैलेंस जगह पर ही ये मुरम्मती काम जो है वो किया गया है। सीमेंट लगा दिया गया है कि झूलों वाले ग्राउंड की मुरम्मत की जा रही है, और उसके साथ साथ पार्क के जो मुरम्मती काम शुरू किए गए हैं उसको बेहतर अंदाज के साथ जो है वो किया जा सके, ताकि जो ये पैसा है वो अच्छे तरीके के साथ जो है लगाया जा सके। और तांदलेवाला की शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी ये अपील की है कि जो यहाँ पर ये रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया है उसके हवाले से नोटिस ले। जी बहुत शुक्रिया गुलरेज साहब का। समंदरी और गिरदोनवाह में धान की फसल की कटाई का सीजन शुरू हो गया। धान की कटाई के साथ ही गंदम की काश्त शुरू हो जाती है। रवां सीजन किसानों ने गंदम काश्त करने से हाथ खड़े कर दिए। किसानों का कहना है कि गुज़श्ता साल हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी नहीं हुई। महंगे बीज, खाद, बिजली के बिलों के हिसाब से गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, गंदम की काश्त का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो समंदरी और उसके गिरदोनवाह में इस बार जो है वो
उस तरह से जो काश्तकार हैं वो पुरजोश नज़र नहीं आ रहे और गंदम की काश्त जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पिछले साल हो रही थी। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या वजूहत हैं? गंदम जो है वो सीज़न शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक काश्त शुरू नहीं हो चुकी। देखो जी, पिछली दफ़ा गंदम का रेट कोई नहीं मिलया, खाद का रेट डबल सी, गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने उस तो पिछले साल ऐलान किया सी उस तो अद्धा सी, मतलब 2200 या 2400 तो ज़्यादा रेट नहीं सी लग रहा। इस वजह तो गंदम पई खराब हो रही है, उन्हें सुसरी पुणखी लग गई है, हाले तक भी गंदम का रेट पूरा नहीं बनया। जिस वजह तो असीं हुण देख रहे हैं भी गंदम बीजीए या कोई होर फसल बीज लईए, कोई सरों बीज लईए, कोई से चीज़ का कोई रेट नहीं। अगर कोई रेट गवर्नमेंट कढ़दी भी है तो वो पूरी नहीं उतरती। मतलब जदों आंदी है किसान दे कोल उदों रेट हाफ हो जाता, जदों वो निकल जाती उदों रेट फिर उत्ते आ जाएगा, बाद च आ जाएगा तो की फायदा, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल जी, किसानों के इस हवाले से ये कहना है कि अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो रहे। धान की फसल जो है वो उसकी कटाई शुरू हो चुकी है और गंदम का सीज़न जो है वो शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस तरह से किसान जो है वो पुरजोश दिखाई नहीं दे रहा। उनका यही कहना है कि उनके अखराजात पूरे नहीं होते और इसी वजह से जो है वो सोच रहे हैं कि कोई और फसल जो है वो काश्त। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद आपको बताएं कि गंदम की बेहतर पैदावार के लिए उगेती काश्त मौजू। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम की काश्त शुरू हो गई है। माहिरीन कहते हैं सर्टिफाइड बेस से पैदावार बेहतर बनाई जा सकती है। मुतनासिब खाद भी मुआवन साबित होगी। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर गंदम की अर्ली काश्त के हवाले से, तो गंदम की काश्त का बाकायदा सिलसिला यूब ज़रई तहकीकाती इदारा में शुरू कर दिया गया। डायरेक्टर गंदम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो यहाँ पर उगेती गंदम उगाई जा रही है तो इस सिलसिले में बताइएगा और गंदम के हवाले से ओवरऑल किसानों को क्या सुजेस्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंजाब के बारानी इलाकों में तो भरपूर तरीके से बिजाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जो हमारे नहरी इलाके हैं इसमें अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये नवंबर शुरू हो लेना देना चाहिए। तो उसके बाद जो है 20 नवंबर तक, यकम से 20 नवंबर तक जो है वह बिजाई मुकम्मल करनी चाहिए ताकि भरपूर पैदावार हासिल हो सके। उसके बाद बिजाई जो की जाती है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस वक्त बिजाई के लिए मैं किसान दोस्तों को मशवरा दूंगा कि अच्छा बीज, बेहतरीन क्वालिटी की जो अक़साम हैं जिसमें अकबर 2019, दिलकश 20, अरूज 22, इसके साथ बकर स्टार हैं और नवाब वगैरह, ये जो हैं ये वैरायटियाँ काश्त करें, पुरानी वैरायटीज़ को छोड़ दें। इस हवाले से डायरेक्टर गंदम डॉक्टर जुबैद अहमद बता रहे थे कि अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो फसल को बेहतर बनाना मुमकिन हो सकता है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी मसनूई किल्लत रोकने की कोशिश। फैसलाबाद इंतजामिया ने शुगर डीलर से बासपुर शुरू कर दी है। शुगर डीलर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिए। डीलर्स ने नोटिस हिरासती करार दे दिए। साबिक नायब सदर चैम्बर असलम भंडी और कायम मुकाम सदर कैसर गुच्छा कहते हैं कि इदारे बेजा तंग ना करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बात करें तो इस वक्त क्रशिंग सीजन जो है वो ताहाल अभी शुरू नहीं हुआ, वो तो अपने वक्त से ऑलरेडी ताखीर का शिकार है, लेकिन अदारे जो हैं वो एक्शन में नज़र आते हैं। हमारे साथ साबिक नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर असलम बली साहब मौजूद है जो कि खुद पंजाब के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं शुगर के। इसके साथ कैसर शमल गुच्छा साहब मौजूद हैं, कायम मुकाम सदर। बली साहब से आगाज़ करते हैं। बली साहब, क्या मसाइल हैं इस वक्त चीनी के अंदर, और दोबारा से जब सीज़न आता है ये दोबारा अफवाहें फैलती, चीनी महंगी होने लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मैं गुजारिश कर दूं, ये कंसेप्ट गलत है कि चीनी महंगी होने जा रही है। चीनी महंगी होने नहीं जा रही, क्योंकि हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक भी है और हमारी फसल भी इस वक्त मरतबा जो गंदम की उसकी गन्ने की है वो ठीक है, इसलिए ये कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ जो है FBR की नारवा पाबंदियाँ और दीगर मसाइल की वजह से ये कारोबार जो है वो इन्हतात पजीर है। आप गुच्छा साहब क्या कहेंगे, कायम मुकाम सदर चैम्बर के अदारों के नोटिस जो हैं वो कारोबारी अफराद को डराए हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए जी, सबसे पहले बात यह है, जैसे अभी बली साहब ने फरमाया है, देखिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमारी देखें चैम्बर का मतलब है कि हमारे साथ जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका एक अदारे के चैम्बर के नीचे हमारा 137 हमारे स्टेक होल्डर हैं, एसोसिएशन है। तो हमने तो इनका सबका दिफा करना है और हमारा फर्ज भी बनता है। और दूसरी बात ये इन्होंने की है कि FBR वाले ये दूसरे जो हरासमेंट करते हैं, मेरा ख्याल है इनको हरासमेंट नहीं करनी चाहिए। लोग ताजर हम टैक्स देना चाहते हैं और ये टैक्स लेना चाहते हैं। कैसर शमल गुच्छा साहब असलम बली साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अदारों को चाहिए कि स्मूथ रनिंग के अंदर काम को लेकर चले, ना कि ऐसी हर्डल्स पैदा करें कि कारोबार जमूद का शिकार हो। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने घर बनाना और भी मुश्किल कर दिया। सरीर की कीमत में 10,000 रुपये फी टन का इजाफा। ताजरों ने भी सर पकड़ लिए।
कहते हैं कारोबार बंदिश के दहाने पर पहुंच गया, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। सरिये की कीमतों में 2 दिनों के दौरान 10,000 रुपये फी टन का इजाफा हुआ है, जिसके बाद टिम्बर वायरन मार्केट शेखपुरा रोड के जो ताजर हैं उनकी जानिब से भी शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता जो अफराद हैं वो भी परेशान हैं और रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। मिर्ज़ा अशरफ मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, सदर टिम्बर वायरन मार्केट, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, क्या कहेंगे सरिये की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर क्या असर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कारोबार की कि कारोबार तो ना होने के बराबर है। पिछले महीने सरिया कोई बैक हुआ था, रेट कम हुआ था, लेकिन इस हफ्ते तकरीबन इस हफ्ते में 10,000 रुपया फी टन ऊपर चला गया है। लेकिन ऊपर सरिया जाए या नीचे जाए, को गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी हैं, कारोबार ही नहीं है। ये मजदूर हैं बेचारे फारग बैठे हैं। आप मार्केट देखें बिल्कुल खाली वीरान है, काम ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, मार्केट जो है उसमें वीरानियां हैं, काम ना होने के बराबर है। हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि महंगाई को कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फजील आपका। डाकुओं और चोरों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। फैसलाबाद पुलिस डाकुओं और चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बजाय 17,000 से जायद मुकदमात को अदम पता करार देकर दाखिले दफ्तर कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस डाकू और चोर गिरफ्तार करने की बजाय मुकदमात को अदम पता करार देने पर जोर देने लगी। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल दर्ज होने वाले कुल मुकदमात में से 17,259 मुकदमात मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने अदम पता करार दे दिए। ये वो मुकदमात हैं जिनमें डाकू और चोर पुलिस को मतलूब हैं। डकैती, चोरी, राहजनी के मुकदमात के मुलजमान का तयन करने की बजाय, उनको गिरफ्तार करने की बजाय 17,000 से जायद मुकदमात को अदम पता करार देकर दफ्तर दाखिल कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो मुकदमात अदम पता करार दिए गए वो सदर पुलिस की जानिब से 1,356 मुकदमात थे, जबकि दूसरे नंबर पर थाना मिल्लर टाउन पुलिस की जानिब से 1,302 मुकदमात को अदम पता करार दिया गया। तीसरे नंबर पर मदीना टाउन पुलिस ने 1,126, चौथे नंबर पर सिविल लाइन पुलिस ने 845। यही अदम पता मुकदमात के डाकू और चोर फैसलाबाद में जराइम का सबब बन रहे हैं। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब के धीरानी प्रोग्राम की दरखास्तों की वसूली में 5 रोज बाकी। अब तक जंग के 80 से ज्यादा शहरी दरखास्तें जमा करा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। अपडेट कीजिएगा। जवान बेटियों को बहाने के लिए हुकूमत पंजाब ने जो है वो जिम्मेदारी ली है और धीरानी प्रोजेक्ट के तहत झंग समेत पूरे पंजाब में पहले फेज़ में 1500 जोड़ों की शादी जो है वो सरकारी खर्चात के ऊपर की जा सकेगी। दूसरे फेज़ में भी जो है वो 1500 अफराद जो हैं, जोड़े जो हैं वो ब्याहे जाएंगे। इस मकसद के लिए 3 लाख रुपए तक के अखराजात जो है हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी, जिसमें ना सिर्फ 1 लाख रुपए की सलामी जो है वो दूल्हा दुल्हन को जो है वो दी जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ 20 अफराद लड़की की तरफ से या दुल्हन की तरफ से और 20 अफराद जो हैं वो दूल्हे की तरफ से जो है वो इस इज्तिमाई शादी के अंदर जो है वो शरीक हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब जो है वो लड़की के जहेज़ में ना सिर्फ कपड़े बर्तन देगी, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरी फर्नीचर की चीज़ें भी जो हैं वो शामिल की जाएंगी। मकसद सिर्फ ये है कि वो बेटियां जो कि घरों में जहेज़ का इंतज़ार करने की वजह से जो है वो मुंतज़िर हैं कि उनकी शादी हो सके, वो जो है वो अपने घर जो हैं वो जा सकें, ब्याही जा सकें। इस मकसद के लिए पहले मरहले में मुस्तहिक अफराद और यतीम बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो अप्लाई करेंगे या महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर जाके दरख्वास्त देंगे, जिसके बाद उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। और इस सारे मरहले के गुजरने के बाद जो है तवक्को है कि ऐसे ख़ानदान जो कि अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे वो इस जो है वो सुन्नत नबवी से जो है वो इस सुन्नत को अदा भी कर सकेंगे और जो बेटियां हैं वो अपनी घर की हो सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका।